Hello, friends. I'm your teacher, Sunil Vaisar. I welcome you in this lecture. Today's lecture is about investment accounting, the topic which is given by the university to the third year BCom. In the first lecture of this topic, we have seen some basic concept. We learn what is the investment. So what is the investment? Investment nothing but the money invested into the business, and the second angle is that money invested into the particular security to earning money. So this is an investment. Suppose money invested into shares, money invested into the debentures, money invested into mutual fund, bonds, and like this is an investment. Okay. So today we will try to understand two very basic and important concept. This is a X interest and cum interest. Okay, let us try to understand. TY become investment accounting, cum interest and X interest. As I told you in the first lecture, today investment are freely bought and sold in the stock market. There is a capital market, there is a money market, and investment freely bought and sold in the stock market with the electronic media or with the electronic system. See, when people invest their money into particular security, they get the interest, they enjoy the interest. Suppose I am Sunil Vaisar and I invest my money into the Tata Motors shares and I receive dividend. Suppose my money I invested into the Glenmark company's debenture and I enjoy interest, this is my income. Let's try to understand the two angle. People invest and they enjoy interest or dividend, and this is an income for them. Second things, when people take the loan, when people get the loan and people paid the interest, this is the expenses. Okay. Now, whenever a people or investors purchase or sell their security, sometimes people purchase security, whatever bonds, shares and debentures, sometimes they sell the security. So at the time of sale and purchase, there is a price. The price at which security traded in the market, this is known as the quotation. We heard this word so many times in the general language. Quotation, गाड़ी का quotation निकालना है, बंगलो का quotation निकालना है, फ्लैट का quotation निकालना है. So what is the quotation? Quotation is nothing but the price. कीमत है उस चीज की, कौन सी चीज की? निवेश की. निवेश की मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो मुझे परचेस करना है. सपोज मुझे शेयर्स परचेस करना है या सपोज मुझे शेयर्स बेचना है, तो उसकी जो प्राइस है, द प्राइस दैट इज कोटेशन प्राइस, द प्राइस, इशूड प्राइस, सेल प्राइस और परचेस प्राइस एट विच सिक्योरिटी ट्रेडेड इन द मार्केट, दिस इज नोन एज अ कोटेशन. ओके, यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट quotation is what? Quotation is nothing but the price. Now try to understand the security. The security can be quoted in two ways. ये जो कोई security होती है, debentures, bonds, shares, इसकी जो कीमत होती है, प्राइस होती है, ये दो तरीके से शो की जाती है या दो तरीके से उसको मार्केट में दिखाया जाता है. कौन से दो है? फर्स्ट कोटेशन प्राइस, द फर्स्ट वाला होता है कम इंटरेस्ट. क्या होता है? कम इंटरेस्ट मीन्स, इसका मीनिंग अगर हम समझते हैं तो कम इंटरेस्ट मीन्स द प्राइस विथ अटैच इंटरेस्ट. कम मीन्स इंक्लूसिव, इंक्लूड विथ. सपोज ये जो मेरा शेयर्स है, इस शेयर्स की सपोज 10 रुपए प्राइस है, तो इसके साथ जुड़े हुए कुछ जो डिविडेंड है या जो कुछ इंटरेस्ट है, अगर मैं इस प्राइस में इंक्लूड करता हूं तो इसको क्या बोलूंगा? कम इंटरेस्ट. जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो कम इंटरेस्ट इज द प्राइस, quotation price, where the interest is included from
लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या होता है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? मानो समझो 1 अगस्त को ट्रांजैक्शन हुआ, 1 अगस्त को क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है, परचेस होता है समझो, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका डेट है 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। अभी समझो अक्टूबर 1 अप्रैल को डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट है, तो पिछले अप्रैल को इंटरेस्ट पूरा क्लियर हो चुका है, बायर को, सेलर को, जो जिसके हाथ में सिक्योरिटी है, क्योंकि ये बेरिंग होता है, फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता है, जिसके हाथ में सिक्योरिटी होती है उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ? जिसके साथ में था उसको इंटरेस्ट मिल गया। आफ्टर मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के बाद क्या किया? उसने वो सिक्योरिटी बेची। अभी समझो मेरे फ्रेंड से मैंने सिक्योरिटी ली है, तो उसका जो इंटरेस्ट है मुझे मिलने वाला है, कब मिलेगा? 1 अक्टूबर को। ये तो 4 महीने का जो इंटरेस्ट होता है, इफ दिस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड विद द प्राइस, दिस इज एन कम इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट मीन्स एक्सक्लूसिव, विदाउट, एक्सक्लूसिव विदाउट, कि जिसके साथ ये इंटरेस्ट जुड़े हुआ नहीं रहता, उसको बोलते हैं हम एक्स इंटरेस्ट। ट्राई टू गेट द एग्जांपल ऑफ कम इंटरेस्ट। सपोज 10% 10,000 डिबेंचर्स, 10% और ₹10,000 के अगर डिबेंचर है तो उसमें कैपिटल का अलग से निकलेगा, और जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अलग से निकलेगा, उसका हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। सपोज एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्स इंटरेस्ट में क्या होगा? ओनली 10,000, ओनली 10,000 दिखेगा। यहाँ पे ये इंटरेस्ट का जो है वो उससे डिडक्ट नहीं होगा, वो हमें सिर्फ कैलकुलेट करके क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, चलो, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the come interest with the example. Okay, come interest example. Suppose there is a 212% debentures having a face value of ₹100 issued at price ₹98. 200 डिबेंचर्स है, क्वांटिटी 200 डिबेंचर्स है, जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है, और ये जो 12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और इशूड प्राइस कितना है? 98 है। अभी ये जो पेमेंट होता है, अगर मैंने डिबेंचर्स लिए हैं तो साल में मुझे सपोज 2 बार उसका इंटरेस्ट मिलता है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि आई वांट टू एंजॉय इंटरेस्ट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। तो 2 बार इंटरेस्ट मिलता था। एक उसकी डेट थी 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। ओके, 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर को मुझे इंटरेस्ट मिलता था। अभी देखो क्या हुआ, 1 अगस्त को, सपोज 1 अप्रैल को मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिल गया। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, आराम से समझो, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, 200 डिबेंचर्स की क्वांटिटी है, 12% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹100 है। ओके, और उसकी इशूड प्राइस, परचेस प्राइस, सेल्स प्राइस कितनी है आज? 98। आज मतलब कब? 1 अगस्त को। तो मैंने क्या किया, 1 अगस्त को ये इन्वेस्टमेंट मुझे बेचनी थी, आई वांट टू सेल इट। अभी 1 अप्रैल तक तो मुझे इसका इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि 1 अप्रैल को मेरे पोजीशन में थी, मेरे पास थी, तो 1 अप्रैल तक मुझे क्या हुआ? इंटरेस्ट मिला। उसके बाद 1 अगस्त को आई थॉट मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट बेचने का सोचा। सो देखो, अभी हम इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो फर्स्ट फेस वैल्यू क्वांटिटी 200 इंटू 100 कितना हुआ? 20,000। फेस वैल्यू 20,000। मार्केट प्राइस ऑन 1 अगस्त I want to sell it, and what is the market price? 200 into 98 मतलब कितना? 19,600। 19,600 मार्केट में मुझे बेचनी पड़ी। अभी इस पर मुझे निकालना है कम इंटरेस्ट। एग्जाम्पल है कम इंटरेस्ट का। तो कैसे निकालेंगे कम इंटरेस्ट से? मुझे इंटरेस्ट कम मिला था
1 अप्रैल को। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? 1 अगस्त। तो पीछे जाना है हमें। व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द कम इंटरेस्ट, पीछे जाना है। कहाँ तक? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1 अप्रैल। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का मुझे कम इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, फेस वैल्यू पे हमेशा इंटरेस्ट निकालते हैं। 20,000 इंटू 12% इंटू 12 डिवाइडेड 100 कितना आया? 2,400 फॉर ईयर। लेकिन मुझे कम इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालना है? ओनली 4 कहां से आए? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 1 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का। सो 2400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 कितना होता है? कितना होता है? 800, राइट? 800। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, मार्केट प्राइस कितना है मेरा? 19,600। इसमें से मुझे ये 800 माइनस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? मतलब कैसे दिखाऊंगा मैं अभी? कम इंटरेस्ट कोटेशन। कम इंटरेस्ट कोटेशन देखो, फेस वैल्यू 20,000, मार्केट प्राइस 19,600। इसमें से क्या होगा? 800 क्या है? इंटरेस्ट है। और जो कुछ बचा है, कितना बचा है? 18,800, राइट? 18,800 ये क्या है? कैपिटल। सो दिस इज अ कम इंटरेस्ट। अभी जो मेरे जो लेजर रहेगा इन्वेस्टमेंट का, डेट लिखूंगा, पर्टिकुलर लिखूंगा, कैपिटल फेस वैल्यू के कॉलम में लिखूंगा 20,000, राइट? इंटरेस्ट के कॉलम में आई विल राइट 800 एंड इन कैपिटल आई विल राइट 18,800। वेरी सिंपल, इतना वो आसान है। गेट इट?